بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں شہر کے مختلف علاقوں میں آندھی تیز ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 جون تک لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان ہے۔ لاہور، فیصل آباد، جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسم کا احوال جانتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ جی، شہر لاہور میں ابھی گردآلود آندھی شروع ہو چکی ہے۔ ناروور اور سیالکوٹ سیکٹر کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کی بھی اطلاعات ہیں۔ آج دن بھر درجہ حرارت 45 ڈگری کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ دن میں بہت زیادہ گرمی تھی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ آج رات جو اسپیل شروع ہوگا وہ کل، پرسوں اور 16 جون تک وہ کہہ رہے ہیں مختلف اوقات کے اندر نہ صرف لاہور بلکہ جنوبی پنجاب کے اندر بھی مختلف مقامات پر برسے گی بارش، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جھکڑ چلے گا جو ابھی شروع ہو چکا ہے۔ ابھی لاہور میں اس طرح زیادہ تیز نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے چند گھنٹوں میں یہ جھکڑ جو گرد آلود ہو وہ زیادہ تیز ہو جائے گا، جس کے باعث موسم بھی بدلے گا اور گرمی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 35% ہے، جو بڑھ کے تقریباً 50% سے زائد جانے کا امکان ہے۔ کل دن بھر بھی موسم ملا جلا رہے گا اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی رہے گی، لیکن دن کے اوقات میں گرمی ہوگی۔ اگر آج رات ایک سپیل اچھا لاہور میں برستا ہے، اس صورت کے اندر کل دن میں موسم خوشگوار ہو جائے گا، لیکن اگر مختلف اوقات میں برسا کوئی بھی سپیل بارش کا تو اس صورت کے اندر گرمی کی شدت زیادہ رہے گی اور آہستہ آہستہ گرمی کی شدت کم ہونا بارش زیادہ ہونے کی صورت میں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمتی قرارداد متفقہ منظور۔ اسپیکر ملک احمد خان نے CSR کمیٹی میں ارکان صوبائی اسمبلی کی شرکت اور فنڈز نہ دینے کے معاملے پر پارلیمانی سیکریٹری برائے توانائی کی سرزنش کی۔ اجلاس کی تفصیلات بتا رہے ہیں حمزہ خورشید اپنی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا تو اپوزیشن نے بانی PTI کی رہائی کے لیے خوب نعرے بازی کی۔ جملے کسنے پر اسپیکر نے اپوزیشن ارکان سے کہا کہ میرے ساتھ نہ بگاڑیں، میرے ساتھ اچھے رہیں۔ اسپیکر CSR کے فنڈز اور کمیٹی ارکان کے معاملے پر پارلیمانی سیکریٹری برائے انرجی منصور اعظم پر برس پڑے اور اجلاس 5 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ کرنل صاحب، کرنل شعیب امیر، come on yaar, there is some method to the madness also. یہ میری ہوئے آپ کو مہنگی پڑنی ہے، میرے نال کم ٹھیک رکھو چنگے رہ جاؤ گے۔ No, I'm seriously saying it. میں نے ابھی نہیں کیا سردار صاحب، I will, and you know that I can. اور کسی کو پتہ نہ ہو، سردار محمد علی آپ کو پتہ ہے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق مذمتی قرارداد کی اجازت مانگی تو اسپیکر نے قواعد معطل کر کے قرارداد پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جس طرح حالیہ پاک بھارت تنازع میں عالمی برادری نے سیز فائر میں کردار ادا کیا، اسی طرح ایران اور فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں بھی عالمی برادری ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسرائیل کی مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت، بربریت، ظلم، بچوں، خواتین، بزرگوں، جوانوں کی شہادتوں کی داستان خون و رنگ جاری ہے۔ یہ معزز عوام توقع کرتا ہے کہ جس طرح حالیہ پاک بھارت تنازع میں عالمی برادری نے سیز فائر میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا، اسی طرح ایران اور فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو فی الفور روکنے میں بھی وہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ اپوزیشن کی کورم کی نشاندہی پر حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام رہی، جس پر پینل آف چیئرپرسن راجہ شوکت بھٹی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوموار 16 جون صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ تنازعات نے دنیا کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ AI کی ہراسمنٹ روکنے کے لیے قوانین بنانا ہوں گے۔ DG پیمرا عائشہ منظور بٹو نے کہا جنگیں آزادیوں اور انسانی حقوق کا قتل کرتی ہیں۔ پاکستان میں محفوظ اور جامع میڈیا مواقع، چیلنجز اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر تقریب سے خطاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ غزہ میں خاندان کے خاندان شہید ہو چکے، اسکول اور ہسپتال تباہ، جبکہ خوراک کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے جنگی جنون کو بڑھاوا دیا، یہ بھی نہ سوچا 2 ایٹمی ملک ہیں، جنگ شروع ہوئی تو بہت نقصان ہوگا۔ جنگ تو بہت بڑھ گئی، اور پھر میں دوسری طرف اس مخمصے میں تھا کہ میری وطن کی حرمت پہ داغ لگ گیا ہے، اب میں کیا اس کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتا۔ سو آئی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، اور مجھے یہ لڑنی بھی ہے اور جیتنی بھی ہے۔
इस अरसे में भी मैंने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया was doing their role with best of their responsibility. डीजी पैमरा आयशा मंजूर का कहना था कि पैमरा इसलिए कायम किया गया था कि अवाम को बेहतरीन तफरी और मालूमाती प्रोग्राम देखने को मिल सकें। कोई चैनल कोई एंकर कवानीन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये इम्पोर्टेंस है मीडिया की कि इस तरह से हमारे मुल्क का जो इलेक्टोरल सिस्टम है और जो हमारा जमहूरी निज़ाम है वो इस तरह वर्क करता है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मीडिया पर्सन्स के कांधों पर कितनी अजीम जिम्मेदारी है, नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी है और नेशन को एजुकेट करने की और नेशन को गाइड करने की जिम्मेदारी है। आयशा का कहना था कि बैरून ममालिक में बहुत से मैकेनिज्म बनाए जा चुके हैं, हमें भी AI की तालीम को आम करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं ईरान पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है, इसराइल की किसी जारियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल और भारत दुनिया के अमन से खेलना चाहते हैं, इनको रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि ईरान पर हमला ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का हिस्सा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की फौज और कौम के खिलाफ भी चंद बरस से साजिशें देख रहा हूँ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, इसमें वाज़ेह हुआ कि मुल्की दिफा का मजबूत होना कितना जरूरी है। हिंदुस्तान और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा बनाया जिसका मकसद भी ये था कि पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर किया जाए। जब हम बुनियानुल मरसूस बने और अल्लाह ने मार्काए हक में हमें कामयाबी दी, आज पाकिस्तानी कौम को और दुनिया को ये एहसास हुआ है कि दिफा का मजबूत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि कश्मीर और गजा में खूनी खेल खेला गया है। पाकिस्तान के साथ ये खेल खेलने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। OIC को फौरी इजलास बुलाना और इसराइल को भरपूर जवाब देना चाहिए। गजा में जो खेल खेला गया और जो कश्मीर में खेल खेला जा रहा है और जो कुछ पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे अल्लाह के फजलो करम और एहसान से आज मेरी कौम और मेरे मुल्क का दिफा, हम इस पे फख्र करते हैं कि हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अल्लामा ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि इसराइल और भारत दुनिया के अमन से खेलना चाहते हैं, इन्हें रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत के नए बजट में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तिस। बजट के मुमकिन खदोखाल की तफसीलात लाहौर न्यूज़ सामने ले आया। सेहत, स्पोर्ट्स और तालीम की बाबत हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट में क्या क्या ऐलानात करने वाली है, तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा की इस रिपोर्ट में। बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तिस। सेहत और स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के नए और पुराने प्रोजेक्ट्स की तकमील होगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के लिए 12 अरब रुपए मुख्तिस। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ 89 लाख मुख्तिस। मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर के क़याम के लिए 20 करोड़ की तजवीज़। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2 अरब 56 करोड़ 82 लाख की तजवीज़। पंजाब के बजट 2025-26 में सेहत प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए खर्च होंगे। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तिस। बजट में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब 68 करोड़ 76 लाख रुपए रखने की तजवीज़। मरियम नवाज रूरल अस्पतालों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इकदामात के लिए 3 अरब रुपए की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़। रावलपिंडी चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जुबली टाउन लाहौर पर 67 करोड़ 94 लाख मुख्तिस किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 16 जून को बजट पंजाब असेंबली में पेश करेगी। महकमा PND ने बजट का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा PND ने बजट 2025-26 का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़ दी गई। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। PND ज़राए का कहना है कि महकमा ज़राअत को 80 अरब, ट्रांसपोर्ट के 70 अरब
अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्कूल एजुकेशन को 100 अरब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 40 अरब, गवर्नेंस एंड IT के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। महकमे अनहार की तरक्याती स्कीमों के लिए 40 अरब, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 25 अरब रखने की तजवीज़ है। हायर एजुकेशन के लिए 25 अरब, इंडस्ट्रीज 12 अरब, टूरिज्म 30 अरब, वाइल्ड लाइफ के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। फिशरीज 10 अरब, माहौलियात 15 अरब, स्किल डेवलपमेंट 12 अरब, स्पोर्ट्स 7 अरब 60 करोड़ रखने की तजवीज़ ड्राफ्ट में शामिल है। महकमे तवानाई 7.5 अरब, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 6 अरब, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट के लिए 5 अरब 51 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। महकमा जंगलात 5 अरब, लाइफ स्टॉक 5 अरब, इंसानी हकूक और अकलीती अमूर 4 अरब, लिटरेसी के लिए 4 अरब रखने की तजवीज़ है। सोशल वेलफेयर 3 अरब, स्पेशल एजुकेशन 2 अरब, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 5 अरब रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 892 अरब 78 करोड़ की लोकल फंडिंग, 184 अरब 49 करोड़ की फॉरेन फंडिंग शामिल होगी। 124 अरब 73 करोड़ दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। PND के बजट ड्राफ्ट की मंजूरी पहले काबीना से फिर पंजाब असम्बली से ली जाएगी। माली साल 2025 और 26 का बजट पंजाब हुकूमत का AI सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला, मसनूई जहानत से चलने वाला सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट डिजिटल मीडिया या विंग में बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में पंजाब हुकूमत का AI सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल माल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, अदबी चाय खाना बुक वेयर हाउस की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल, मुल्तान DG खान मरी के आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे भी शामिल। भक्कर आर्ट्स काउंसिल के क़याम का फैसला, जिसके लिए 5 करोड़ 75 लाख 73 हजार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हड़प्पा, चोलिस्तान, साहिवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। रावलपिंडी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। DGPR कॉम्प्लेक्स की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। गर्मी की जारी शदीद लहर ने दिल के मामूलात ज़िरोज़ पर होने के खदशात में इजाफा कर दिया। तिबी माहिरीन की दिल के मरीज़ों को ख़ास एहतियात बरतने की हिदायत, कहते हैं शदीद गर्मी से दिल के मरीज़ों के लिए तिबी मसाइल पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल कैसर। हर गुजरते दिन के साथ मौसमियाती तगय्युर और तबद्दल हमारे मुल्क में अपने पंजे मजबूत करता चला जा रहा है। इस सूरत हाल की वजह से मौसमों की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है। इन दिनों भी गर्मी की शदीद लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। गर्मी की वजह से जहां हर कोई निढाल और बेहाल दिखाई दे रहा है, तो वहीं दिल के मरीजों के लिए सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया गया है। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं वो एट रिस्क होते हैं। आम तौर पे उनमें कोई ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट फेलियर, जिसमें सांस का फूलना या धड़कन की अलामत होती हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हैं गर्मी के साथ उनके दिल की धड़कन और सांस के उखड़ने का खदशा होता है। तिब्बी माहिरीन करार देते हैं कि गर्मी के दौरान जिस्म से पसीना खारिज होने का अमल दिल पर दबाव बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है कि शदीद गर्म मौसम के दौरान जिस्मानी सरगर्मियों को महदूद कर दिया जाए और सलाद, फलों, पानी के ज्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जब भी मौसम शदीद हो तो दिल के मरीजों को कम अज कम एक बार अपने मौलिद से जरूर राबता करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा के मरीज़ हैं उनकी दवाइयाँ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है कि अगर वो वही रूटीन मेडिसिन जो हम सर्दियों में दे रहे हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम होने का रिस्क होता है। तो इन तमाम सूरत हाल में जब गर्मियों का आगाज़ हो या इवन जब एक्सट्रीम सर्दी का आगाज़ हो तो हम मरीज़ों को ये तजवीज़ करते हैं कि आप अपने फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बिलाशुबा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से बीमारी का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया जा सकता है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि साफ़ पानी अथॉरिटी सूबे के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फ़ाल कर रही है। शहरियों को मयारी पानी की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग का आज़म गार्डन, इत्तफाक टाउन और इत्तेहाद कॉलोनी का दौरा बिलाल यासीन ने इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वासा ट्यूबवेल्स के दौरानिए को चेक किया। वज़ीर हाउसिंग का कहना था कि गर्मियों में पानी की तलब के पेश नज़र तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द फाल कर दिया जाएगा। पानी की फराहमी के औकात कार और मयार में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं,
LDA टाउन प्लानिंग विंग की गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 66 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया है। LDA टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग, फैसल टाउन, न्यू गार्डन टाउन में 35 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया। शादमान, शाहजमाल, गुलशन रावी, मेन जूबीडी केनाल रोड और शादबाग में 31 इमलाक सरबा मोहर की गई, जिनमें निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफ़े, ग्रॉसरी स्टोर, फूड पॉइंट, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की ज़ेर निगरानी किया गया। लेस्को के रहमानपुरा ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी है। आग लगने के बायस ग्रिड स्टेशन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुतअद्दिद फीडर्स के ट्रांसफार्मर जल गए। ग्रिड स्टेशन बंद होने से आधा इलाका अंधेरे में डूब गया है। आपको बता रहे हैं लेस्को के रहमानपुरा ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी है। आग लगने के बायस ग्रिड स्टेशन को भारी नुकसान का सामना हुआ। मुतअद्दिद फीडर्स के ट्रांसफार्मर्स भी जल गए और ग्रिड स्टेशन बंद होने से आधा इलाका अंधेरे में डूब गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं लेस्को के रहमानपुरा ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। आग लगने के बायस ग्रिड स्टेशन को भारी नुकसान का सामना। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।